Hello students, myself SJP. Today I am going to begin a history chapter of class 10th SST. The chapter first, the rise of nationalism in Europe. Children, in the first this article, I want to describe utopian vision, which means depicting something idealistic. The French artist Frédéric Soriot was visualizing a dream of a world made up of nations. He had showed the German people with a common flag, although actually there were number of different states at that time. So it is an idealistic or utopian vision. On the earth, in foreground of image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. Children, this picture was painted by Frédéric Soriot and it was one of the most beautiful painting. Hello, welcome students. Myself SJP. Today I am going to start class 10th SST history subject with the very first chapter, the rise of nationalism in Europe. Children, from the beginning of this lesson, here we are going to discuss a painting that shows utopian vision. The activity is also given. In what way do you think this print depicts a utopian vision? Children, first we will try to understand this painting in proper way. As you know, in 1848, Frédéric Soriot, a French artist, prepared this painting, and this man was a French artist. He prepared a series of 4 prints visualizing his dreams of a world made up of democratic and social republics. Means he had a dream in which he wanted to visualize his vision, that is democratic and social republic. This was his vision and he wanted to depict it by means of his series of paintings. The first print, this figure is first print of Soriot, in which it shows the people of Europe and America. इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग साफ दिख रहे हैं. मैन एंड वुमेन, इसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, वुमेन भी हैं, ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन. एक लंबी ट्रेन बनाकर मार्च कर रहे हैं. एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई इट. जैसे ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरते हैं, वहाँ ये अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आगे बढ़ जाते हैं. एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज फीमेल फिगर. जैसा कि आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में पता ही था कि स्टैचू ऑफ मतलब लिबर्टी, आज़ादी के लिए हमने फीमेल फिगर अडॉप्ट किया. हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट शी बियर्स. इनके हाथों में एक इनलाइटनमेंट का टॉर्च है, एक प्रकाश का टॉर्च है जिसको उन्होंने अपने हाथों में ले रखा है. एंड शी बी इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन अदर. इन्होंने चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन दूसरे हाथ में ले रखा है. सो एंड ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड, इधर ज़मीन पे जो है आपको दिख रहा है साफ, ये जो है अर्थ पे ये जो चीज़ें दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? दे आर द इमेज lie the shattered remains of the symbol of absolutist institutions. जितने भी हमारे absolutist institutions थे, उनका जो है क्या कहते हैं, उनके जो बचे खुचे अवशेष जो है बिखरी हुई अवस्था में पड़े हुए हैं. Children, this term absolutist institutions. First you should try to understand what is absolutist. You know, absolutist is a new word and it signifies, it is a very strong meaning, literally a government or system of rule that has no restraints on the power exercised. तो एब्सोल्यूटिस्ट लोग ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं या एक गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है जो जिनका अपना इस तरह का रूल होता है
जिस पर किसी का प्रतिबंध नहीं होता, कोई भी उनके ऊपर उनको चेक नहीं कर सकता, उनको टोक नहीं सकता। अपने पावर को चाहे जैसे उसका इस्तेमाल करें, बिना किसी से पूछे, बिना समझे बूझे अपने पावर का हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। सो इन हिस्ट्री द टर्म रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्चियल गवर्नमेंट। हिस्ट्री में इस शब्द को, एब्सोल्यूटिस्ट टर्म को, मोनार्चियल गवर्नमेंट को प्रदर्शित किया गया है। जैसे मोनार्ची रूलर्स जितने होते थे वो किसी की नहीं सुनते थे, केवल अपनी बात सामने रखते थे। एंड इट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। और ये स्वकेंद्रित होता था, मतलब ये कुछ ही लोगों के ऊपर ही निर्भर करता था, जो उसका हेड होता था, जैसे किंग होता था। और मिलिट्री का प्रयोग करके वो जो है और लोगों पे दबाव बना करके अपनी बातों को मनवा लेता था। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को हम एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जिसमें जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुइस 16 था। तो इस तरीके से ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस वो खंडहर के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। और इन सॉरियोज यूटोपियन विज़न, अब फ्रेडरिक सॉरियो का एक यूटोपियन विज़न था। The peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume। ये सॉरियो का एक विज़न मतलब एक नज़रिया, उसकी एक सोच ये थी। यूटोपियन का मतलब होता है अ विज़न ऑफ अ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल, मतलब समाज का एक ऐसा स्वरूप जो एक आदर्श स्वरूप है, दैट इट इज़ लाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। ऐसा स्वरूप वास्तव में कभी हो ही नहीं सकता। इस तरह के विज़न को हम यूटोपियन विज़न कहते हैं। इस तरह के नज़रिए को, इस तरह की सोच को, जो कि एक आदर्श सोच होती है समाज की, जो कि इस समय असंभव है। वो रियल वे में इस तरह का विज़न इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लोग जितने भी हैं, हियर in Sorius utopian vision the peoples of the world are grouped as a distinct nations। मतलब यूटोपियन विज़न मतलब इस समाज की एक ऐसी आदर्श रूपरेखा के तहत यहाँ पे नेशंस को एक अलग अलग नेशंस के रूप में दिखाया गया है। आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स, इनकी पहचान उनके फ्लैग से या उनके राष्ट्रीय परिधान यानी उनके ड्रेस से की जा सकती है। And here leading the procession they pass the Statue of Liberty। अपने जुलूस का नेतृत्व करते हुए वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से गुजरते हैं। एंड आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड, और इनमें से कुछ लोग यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं, जो कि सबसे लीडिंग में हैं, सबसे आगे में हैं। विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, और ये दोनों स्विट्ज़रलैंड और यूएस से ये नेशन स्टेट्स बन चुके थे। चिल्ड्रन, हियर एक्टिविटी इज आस्क्ड, इन व्हाट वे डू यू थिंक दिस प्रिंट डिपिक्ट्स द यूटोपियन विज़न। सो इन माई व्यू वी कैन डिपिक्ट दिस पिक्चर एज अ यूटोपियन विज़न बिकॉज this picture shows an ideal society, an ideal condition where यूटोपियन विज़न मीन्स डिपिक्टिंग समथिंग आइडियलिस्टिक। यहाँ पर जो है सब कुछ आइडियल शो किया गया है, एक आदर्श स्वरूप की रचना की गई है। और द फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सॉरी वाज विजुअलाइजिंग अ ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड। उसने दुनिया का एक ड्रीम देखा था, दुनिया कैसी होनी चाहिए। उसने अपने उस सपने को उसने जो है यहाँ अपने पेंटिंग के द्वारा जो है प्रदर्शित किया है। और इसने कहा कि उसका वर्ल्ड का उसका जो ड्रीम था वो उसने देखा कि इट इज़ मेड अप ऑफ नेशंस, पूरी दुनिया नेशन से मिलकर बनी है। ऑल ऑफ देम डिड नॉट एग्जिस्ट एज नेशंस एट द टाइम व्हेन दिस प्रिंट्स वर मेड। जब ये प्रिंट बना था तो उस समय सभी नेशंस नहीं थे, केवल यूएसए और स्विट्ज़रलैंड ही नेशन था। सो ही हैड शोड द जर्मन पीपल विद अ कॉमन फ्लैग। इसने जर्मन पीपल को एक कॉमन फ्लैग से शो किया है, जबकि जर्मन पीपल्स जो थे एक्चुअल में क्या थे, दे वर अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एट दैट टाइम। जर्मनी के लोग उस समय अलग अलग स्टेट्स में बटे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक यूटोपियन विज़न को शो करते हुए एक जर्मन फ्लैग और उनका सेम कॉस्ट्यूम को शो किया है। यही एक यूटोपियन विज़न है। सो इट इज़ आइडियलिस्टिक।
इसलिए इसको हम एक आदर्श यूटोपियन विज़न कह सकते हैं। भले ही जर्मनी जो है अलग अलग स्टेट्स में बटा था, फिर भी इस पिक्चर के थ्रू उन्होंने जर्मनी को एक करके दिखाया। एंड ऑन द अर्थ इन फोरग्राउंड ऑफ द इमेज के सबसे निचले हिस्से में अर्थ पर उन्होंने ये दिखाया है कि किस तरीके से ये जो है हमारे जो ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे, जो मोनार्ची रूल्स थे, मिलिट्री रूल्स थे, वो किस तरीके से वो इस समय खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। रेवोल्यूशन हो चुका है, सारे के सारे लोग आज़ाद हो चुके हैं एंड दे आर अंडर लिबर्टी। सो दिस इज़ कंसिडर्ड एज, दिस इमेज मे बी टोल्ड एज द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। ये जो नीचे हैं ये टूटे फूटे जो है अवशेष बचे हुए हैं मोनार्ची रूल्स के या मिलिट्री रूल्स के। तो इस तरीके से वी कैन से दैट दिस पिक्चर डिपिक्ट्स अ यूटोपियन विज़न। यस स्टूडेंट्स, सो इन दिस पिक्चर फ्रांस इज़ आइडेंटिफाइएबल। फ्रांस को हम पहचान सकते हैं। एक उसके पास रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर है, मतलब एक तिरंगा लिए हुए हैं। हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू, और अभी अभी ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुँचे हैं इस पिक्चर में। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी, और उनके पीछे पीछे जर्मनी की जनता है। बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। उनका जो ट्राई कलर है उसमें 3 कलर है, ब्लैक कलर, रेड कलर एंड गोल्ड कलर का फ्लैग है। So interestingly, at the time when Soryu created this image, the German people did not yet exist as a United States. यहाँ आप देख सकते हैं जब सॉर्यू ने ये पिक्चर, ये पेंटिंग बनाई थी, उस समय जर्मनी क्या था, वो एक नहीं हुआ था, यूनाइटेड नहीं था, वो अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था। The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. यानी जर्मनी के लोग जो थे उन्होंने जो फ्लैग लिया है, जो झंडा लिया है 1848 में, वो इस उम्मीद के साथ उन्होंने लिया है कि एक न एक दिन असंख्य जर्मन स्पीकिंग पीपल्स या उस सिद्धांत के लोग एक नेशन स्टेट के रूप में उभर कर सामने आएंगे और उनके पास भी एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक लोकतांत्रिक संविधान होगा। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इस पिक्चर में जर्मन पीपल्स के पीछे ऑस्ट्रिया के हैं लोग हैं। फिर द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज जो किंगडम है उसके लोग हैं। लोम्बार्डी, पीपल्स ऑफ पोलैंड, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। इस तरह से एक के पीछे एक करके सभी कंट्रीज़ एक पीपल्स ट्रेन बना करके यहाँ से गुजर रहे हैं। सो वी कैन से फ्रॉम द हेवंस अबव, स्वर्ग में ऊपर से क्राइस्ट जिन्होंने हाथ में क्रॉस ले रखा है, सेंट्स उनके साथ जितने भी सेंट्स हैं, एंड एंजल्स जितने भी एंजल्स लोग हैं वो ऊपर से गेज अपॉन द सीन, ऊपर से एकदम निहार रहे थे इस पूरे सीन को कि ये कैसे एकाएक धरती पर चमत्कार हो गया है। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, और वो इसलिए इस्तेमाल किए गए हैं ताकि इसको सिम्बलाइज कर सकें। आर्टिस्ट ने इसको जो है प्रदर्शित करने के लिए कि पूरी दुनिया में सभी नेशंस में एक भाईचारा स्थापित हो गया है। फ्रेटर्निटी हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड, भाईचारा स्थापित हो गया है सभी देशों में। सो दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इशूज विजुअलाइज्ड बाय सॉर्यू इन द फर्स्ट पिक्चर। And during the 19th century, a nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of people. इस चैप्टर में आप बहुत सारे ऐसे मुद्दे पढ़ेंगे जो सॉर्यू के इस पिक्चर में प्रदर्शित किए गए हैं। और 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर एक फोर्स के रूप में उभर कर आई और इसने पूरे क्या कहते हैं यूरोप में एक पॉलिटिकल चेंज ला दिया एंड लोगों के मेंटल वर्ल्ड को, मतलब लोगों की मानसिक स्थिति को बदल कर रख दिया। लोगों के अंदर नेशनलिस्टिक फीलिंग डेवलप होने लगी। द एंड ऑफ रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज द
इमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। और अंत में क्या हुआ, इस चेंज के बाद एक नेशन स्टेट उभर कर आया, हर कंट्री एक नेशन स्टेट के रूप में उभर कर आई। और जबकि उससे पहले ये मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर में बटे हुए थे यूरोप के, और अब ये जो है उनमें एक नेशन स्टेट की भावना आने लगी। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट, उनके अंदर एक नए प्रकार की एक जो है संकल्पना, एक नए तरह की विचारधारा और एक नए तरीके के मॉडर्न स्टेट्स को जो है आगे बनाने के लिए उनके अंदर एक फीलिंग डेवलप होने लगी, जिसमें सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। और इसमें क्या था कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर जो कि पूरे नेशन स्टेट को कंट्रोल कर सके, उसकी जो है उसकी जो कैपेसिटी है, उसके जो पोटेंशियल है, उसको कंट्रोल करके और हर कंट्री अपनी अपनी टेरिटरी डिफाइन कर ले। इट हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, और यूरोप में ये बहुत लंबे समय से डेवलप हो रहा था। बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent। ये जो नेशन स्टेट था, ये एक जो है मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स इस पर विश्वास करने लगे। ये नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ रूलर्स हो, एंड दे केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, और धीरे धीरे लोगों के अंदर एक पहचान स्थापित होने लगी कि हम जो है, हमारी भी कोई आइडेंटिटी है, हमारी भी कोई पहचान है, और हमारा भी जो है इतिहास में हमारा भी एक योगदान है, और हम भी जो है इसके लिए कुछ कर सकते हैं। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरियल, लेकिन ये जो कॉमननेस था लोगों में, ये जो समानताएं थी, बहुत अधिक समय तक नहीं रह पाई। इट वाज फोर्ज्ड थ्रू स्ट्रगल्स, संघर्ष के द्वारा इसे जो है पीट करके जो है एक शेप दिया गया, थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। और ये इसको फोर्स करने का काम, इसको एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ करने का काम किनका था, जो लीडर्स थे उनके एक्शंस के द्वारा हुआ। कॉमन पीपल में से जो लीडर्स निकले और कॉमन पीपल मिल करके उन्होंने एक नेशन स्टेट का शेप दिया। सो दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। सो इस चैप्टर में हम जो है क्या देखेंगे कि डाइवर्स प्रोसेसेस, हर कंट्री में अलग अलग तरीके से प्रोसेस हुए, और इसकी लिए जो इस तरीके से नेशन स्टेट और नेशनलिज्म जो था लोगों के अंदर भरने लगा 19th सेंचुरी में यूरोप में। नाउ वी विल कम टू डिस्कस अ सोर्स, एंड दिस सोर्स हैज़ बीन कलेक्टेड इन दिस हिस्ट्री बुक फ्रॉम द नरेटर, and here this source tells something special. Some special ideas are depicted with this source. This is Ernest Renan. This man, he was a great philosopher. He had some view which shows his quality. In Ernest Renan view, in his lecture, he delivered a lecture at the University of Sorbonne in 1882. इस यूनिवर्सिटी में उसने एक लेक्चर डिलीवर किया। द फ्रेंच फिलोसोफर अर्नेस्ट रेनन आउटलाइंड हिज अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने उनकी जो समझ थी नेशन स्टेट के प्रति, उसको उन्होंने बताया अपने स्पीच में। व्हाट मेक्स अ नेशन, नेशन किस चीज़ से मिलकर बनता है, क्या नेशन को कौन बनाता है। द लेक्चर वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज अ फेमस एस्से, और इनका ये लेक्चर एक फेमस एस्से में जो है, फेमस एस्से के रूप में छपा, जिसका लैटिन नेम था क्विस्टे क्वीने नेशन। व्हाट इज़ अ नेशन, आखिर नेशन क्या है। इन दिस एस्से रेनन क्रिटिसाइजेस द नोशंस
suggested by others that a nation is formed by a common language, race, religion और territory। तो इस एस्से में रेनन ने इस बात की आलोचना किया है कि लोग जो सजेस्ट करते थे कि नेशन क्या होगा, उनके हिसाब से उन्होंने इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा दूसरे लोग नेशन को ये समझते हैं कि नेशन जो है ऐसे सामान्य लोगों से मिलकर बना है जिसमें कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी के लोग रहते, एक जैसी भाषा, एक जैसे वर्ग, एक धर्म और एक क्षेत्र, इनसे मिलकर नेशन बनता है। इसका उन्होंने आलोचना किया। अ नेशन, अकॉर्डिंग टू हिम, अ नेशन इज़ द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडेवर्स। उनके अनुसार नेशन जो है ये एक परिणाम है लंबे समय तक संघर्ष करने का, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन, लोगों के द्वारा बलिदान और उनके समर्पण का ये एक रिज़ल्ट है। हीरोइक पास्ट ग्रेट मैन, जो पिछले समय में जो शौर्य दिखाते हुए लोगों ने अपने आप को जो है इतिहास में दर्ज किया, एक ग्रेट मैन के द्वारा, ग्लोरी, दैट इज़ द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसेज अ नेशनल आइडिया। उनके हिसाब से जो हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन और ग्लोरी, इसके आधार पर हमारा एक जो है यही हमारा सोशल कैपिटल है, यही हमारी सामाजिक पूंजी है जिसके आधार पे नेशनल आइडिया डेवलप हो सकता है। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, टू हैव परफॉर्म्ड ग्रेट डीड्स टुगेदर, टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, दीज आर द इसेंशियल कंडीशंस ऑफ बीइंग अ पीपल। तो एक कॉमन ग्लोरी, हमारे प्राचीन समय से जो है हमारा गौरव जो था लोगों का। टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, और सबकी इच्छाएं एक जैसी हों मौजूदा स्थिति में। टू हैव परफॉर्म्ड ग्रेट डीड्स टुगेदर, सब ने मिलकर एक महान कार्य किए हों। टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, और ये चाहत हो कि अभी हमें और करना है। दीज आर द इसेंशियल कंडीशंस ऑफ बीइंग अ पीपल, ये जो है नेशन स्टेट की जनता बनने की ये महत्वपूर्ण कंडीशंस हैं। सो अ नेशन इज़ देयर फॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडारिटी। उनके हिसाब से ये जो नेशन है एक लंबे स्तर पे जो है ये एक सॉलिडारिटी का प्रतीक है, एक जो है स्वतंत्रता का जो है प्रतीक है। इट्स एग्जिस्टेंस इज़ अ डेली प्लेबिसाइट, और इसकी मौजूदगी एक प्लेबिसाइट के ज़रिए होना चाहिए। दिस टर्म इज़ वेरी यूनिक, प्लेबिसाइट, एंड अकॉर्डिंग टू प्लेबिसाइट वी कैन से प्लेबिसाइट इज़ अ डायरेक्ट वोट बाय विच प्लेबिसाइट इज़ अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। उनके अनुसार प्लेबिसाइट के आधार पे जो है हमें नेशन को चलाना चाहिए, मतलब उसमें एक डायरेक्ट वोटिंग की जाती है जिसमें जनता के लोग जो है मिल करके किसी भी जो है प्रपोज़ल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। उस आधार पे हमें नेशन चलाना चाहिए। उनके हिसाब से अ प्रोविंस इज इट्स इनहैबिटेंट्स, इफ़ एनीवन हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड इट इज़ द इनहैबिटेंट। उनका कहने का मतलब है कि ये प्रोविंस इज इट्स इनहैबिटेंट्स, वो क्षेत्र उनका निवास स्थल है। इफ़ एनीवन हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड, और जिसमें हर किसी को यदि या विचार विमर्श करने का अधिकार है, तो इट इज़ द इनहैबिटेंट, वो किसको है? केवल वहाँ के रहने वाले व्यक्ति को। अ नेशन नेवर हैज़ एनी रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग और होल्डिंग ऑन टू अ कंट्री अगेंस्ट इट्स विल। एक राष्ट्र जो है इस तरह होना चाहिए कि उसका जो रियल इंटरेस्ट है, उसकी जो खुद की चाहत है कि हमें अपने राष्ट्र में कैसे रहना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके इच्छा के खिलाफ कोई उसको छीन नहीं सकता है, उसकी चाहत के खिलाफ कोई इसको ले नहीं सकता। ऐसा नेशन होता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज़ अ गुड थिंग। इसलिए नेशन का जो है अस्तित्व एक बहुत अच्छी बात है, अ नेसेसिटी इवन, और ये यहाँ तक इसकी आवश्यकता भी है नेशन की। देयर एग्जिस्टेंस इज़ अ गारंटी ऑफ लिबर्टी। नेशन स्थापित होना यानी आज़ादी की गारंटी होती है। विच वुड बी लॉस्ट इफ़ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर। और नेशन
का अस्तित्व तब खत्म हो जाता है जब उसका जो है जब पूरे देश में एक ही नियम बनने लगता है या एक ही आदमी रूल करने लगता है, तब नेशन की जो है कंडीशन ख़त्म हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू सोर्स वी कैन समराइज द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ नेशन एज रेनन अंडरस्टैंड्स देम। ही इज टेलिंग टू समराइज द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ नेशन as an activity to discuss, understand them. Why in this view are nations important? So according to my view, nation is important because the French philosopher Ernest Renan explained his understanding of what made a nation. यानी फ्रेंच फिलोसफर अर्नेस्ट रेनन ने अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन किया है कि नेशन क्या होता है। उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम अ नेशन इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय अ कॉमन लैंग्वेज, रेस एंड रिलीजन। उसके अनुसार नेशन जो है एक कॉमन लैंग्वेज या किसी रेस या किसी रिलीजन के द्वारा नहीं बनता। टू फॉर्म अ नेशन एंडेवर, सेक्रीफाइस, डिवोशन आर वेरी नेसेसरी। किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें बलिदान, समर्पण और उसमें लगन, ये सब आवश्यक है। अ नेशन इज़ अ लार्ज स्केल सॉलिडारिटी। नेशन जो है एक लंबी जो है स्वतंत्रता है। इनहैबिटेंट्स ऑफ अ नेशन हैव द राइट टू बी कंसल्टेड। उस नेशन के लोगों को अधिकार है कि एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज़ नॉट ओनली अ गुड थिंग। एक राष्ट्र का अस्तित्व न केवल अच्छी बात है लेकिन ये एक आवश्यकता भी है। इसलिए अ नेशन हैज़ नेवर एनी रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग और होल्डिंग टू अ कंट्री अगेंस्ट इट्स विल। मीन्स नेशन जो है उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई उस पर अपना अधिकार नहीं कर सकता है अगर वो नेशन है, और उसकी इच्छा के अगेंस्ट जो है हम उसके ऊपर शासन नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो नेशन का अस्तित्व वहीं ख़त्म हो जाता है। इसलिए नेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? नेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज एग्जिस्टेंस ऑफ द नेशन इज़ अ गारंटी ऑफ लिबर्टी। यानी नेशन का मतलब है कि हमें वहाँ पे आज़ादी की गारंटी है, इसलिए नेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें गारंटी मिलती है आज़ादी की। एंड लिबर्टी वुड बी लॉस्ट इफ़ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मैटर। और हमारी आज़ादी कब ख़त्म हो जाती है? जब दुनिया में केवल एक कानून हो और एक मालिक बन जाता है।